جب سلکشنا اور خان ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو عین ان لمحات میں منوہر لال بھی ایک خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ آج خلاف معمول اس نے نہایت قیمتی سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا۔ ہال کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کامریڈ منوہر لال نے طائرانہ نظروں سے اندر موجود لڑکھڑاتے جوڑوں کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں مختلف چہروں سے پھسلتی ہوئی خان پر جم کر رہ گئیں، جس نے نیلے سوٹ پر گلاب کا پھول تو لگا رکھا تھا، لیکن یہ خان ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکلوں کے بعد یہ پیلے رنگ کا گلاب حاصل کیا تھا۔ جس بری طرح سلکشنا اس سے چمٹ کر رہ گئی تھی، اس کے بعد سوائے اس سے باتیں کرنے کے وہ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن اپنی پہچان کے لیے یہ پیلا گلاب بہرحال اس نے ہوٹل کی بیلکنی میں لٹکتے ایک گملے سے اتار ہی لیا تھا۔ سلکشنا اسے حیرت سے پھول چوری کرتے دیکھتی رہی۔ پیلا گلاب میری زبردست کمزوری ہے، جہاں کہیں بھی نظر آ جائے یہی حال ہوتا ہے میرا۔ اس نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ سوائے سلکشنا کے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ کمال ہے، لوگ تو سرخ گلاب پر مرتے ہیں مگر آپ؟ خان نے کہا بس میں ایسا ہی ہوں۔ بسا اوقات میں کئی ضروری اور اچھی باتیں اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے چکر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سلکشنا کی بات بڑے فلسفیانہ انداز میں کاٹی تھی۔ پھول کوٹ کے کالر میں سجا کر وہ نیچے ہال میں آ گیا تو ڈائننگ ہال میں بیٹھے دو تین عورتوں اور مردوں نے اس کے کالر میں لگے اس پیلے رنگ کے پھول کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ بظاہر ہال میں موجود لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز سلکشنا ہی میں مگن تھا۔ کامریڈ منوہر لال کے ساتھ چمٹی ہوئی لڑکی گو کی شکل سے فاحشہ نہ لگتی تھی، لیکن اس کے اطوار بالکل فاحشہ عورتوں کے سے تھے۔ اس نے اچانک ہی کامریڈ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ اس کے ساتھ ہی کھچتا ہوا خان کے بالکل سامنے والی میز پر آ کر جم گیا۔ مؤدب بیرے نے مینیو لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ منوہر لال نے اسے جو آرڈر لکھا وہ کوئی نواب ہی لکھ سکتا تھا۔ لڑکی اس سے پہلے ہی سے متاثر تھی، اب تو بالکل ہی دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی ساتھی کو متوجہ کیا، میں تو صرف سبزیوں کا سوپ پیوں گا، لیکن تمہیں ڈاکٹر نے میرے خیال سے ابھی کسی شغل سے منع نہیں کیا۔ اس کی ساتھی لڑکی کو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اب خاصی الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ بھٹنڈا کے اونچے حلقوں خصوصاً شرفاء اور اعلیٰ افسران میں اٹھنے بیٹھنے والی شریف طوائف تھی۔ خود اس کا خاوند ایک بڑا سرکاری افسر تھا۔ یہ الگ بات کہ اکثر اس کی ڈیوٹی بھٹنڈا سے باہر ہی رہا کرتی تھی اور وہ بیچاری اپنی تنہائی کا روگ ختم کرنے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی۔ منوہر لال بھی ایک دن یوں ہی اس سے ٹکرا گیا تھا۔ دونوں کا تعارف آج سے 7-8 ماہ پہلے لدھیانہ میں ہوا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں منوہر لال کو بھی شرفاء کے اس مخصوص طبقے ہی کا نمائندہ جانا تھا جس سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس پر 300-400 روپے خرچ کرنے کے بعد اب منوہر لال اس کا افزانہ بھی وصول کرے گا، لیکن اسے بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ منوہر لال نے نہ تو شراب کو چھوا نہ ہی میٹ کے نزدیک پھٹکا۔ وہ رات کافی دیر تک ہوٹل کے لان کے ایک قدرے تاریک گوشے میں بیٹھے رہے۔ کئی مرتبہ دوران گفتگو اس کا جی چاہا کہ اب منوہر لال اسے فوراً اپنے کمرے میں جانے کی دعوت دے، کیونکہ ٹھنڈی ہوا نے شراب کا نشہ دو آتشہ کر دیا تھا، لیکن منوہر نے رات زیادہ گزر جانے کا احساس دلا کر اس سے رخصت طلب کر لی۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ 8-10 مرتبہ آپس میں ملے تھے، لیکن کیا مجال جو کبھی اس نے منوہر لال کی آنکھوں میں خار دیکھے ہوں۔ اول تو اسے اس گہری آنکھوں میں جھانکنے کا حوصلہ ہی نصیب نہیں ہوتا، اور اگر کبھی منوہر لال اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو وہ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جاتی، جہاں ایک پراسرار تقدس کے سوا اسے اور کچھ دکھائی نہ پڑتا۔ آج بھی وہ اچانک ہی آ گیا تھا اور وہ دونوں ڈنر کے لیے اس ہوٹل میں چلے آئے تھے۔ بیرے نے بڑے اہتمام سے ان کے سامنے ڈنر سجا دیا تھا۔ منوہر لال بظاہر اپنی ساتھی کی گفتگو میں مکمل دلچسپی لے رہا تھا، لیکن اصل میں وہ خان کی طرف متوجہ تھا۔ اسے بخوبی احساس ہو چکا تھا کہ خان نے لڑکی کو بادل نخواستہ ہی اپنے ساتھ اسی کی طرح چمٹایا ہوا ہے۔ خان اور اس کی ساتھی لڑکی دونوں اب کھانے سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ بل خان نہیں ادا کیا تھا اور دونوں اٹھ کر اب ہوٹل کے اس راستے کی طرف جا رہے تھے جو انہیں رہائشی کمروں کی طرف لے جاتا۔ انہیں سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر اچانک ہی منوہر لال پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کی ساتھی لڑکی حیرانی اور تشویش کے ملے جلے جذبات سے منوہر لال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ क्षमा کرنا، اس نے اپنی ساتھی لڑکی سے معذرت کی اور باتھ روم کی طرف آ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی کھانسی ختم ہو گئی۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ دوسرے راستے سے ہوٹل کے رہائشی کمروں کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دانستہ وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر اس کا ٹکراؤ خان سے ہو سکے۔ خان نے بھی اس کی طرح لفٹ استعمال کرنے کی بجائے سیڑھیوں کا راستہ اپنایا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ ہوٹل کی بیلکنی میں پہنچا تو خان بیلکنی سے آگے اس واحد راستے کی طرف جاتا دکھائی دیا جس کے بعد رہائشی کمروں کی قطار شروع ہو جاتی تھی۔ اپنی دانست میں منوہر لال نے بہت احتیاط کی تھی۔
थी, लेकिन खान के हसास कान और बेदार छठे हिस्स ने बैल्कनी से घूमते ही ताक़ुब का एहसास कर लिया था। सुलक्षणा को खांसी चढ़ गई थी और वो ऊंची ऊंची आवाज में कह लगाती उसके साथ ही ऊपर तक आई थी। मनोहर लाल दबे पांव उसके पीछे आ रहा था। खान के लिए अब सिवाय उसके और कोई चारा नहीं रहा था कि वो अपने ताक़ुब में आने वाले को ये एहसास दिलाए बगैर कि उसे ताक़ुब का इल्म है अपने कमरे में चला जाए, और उसने वही किया। सुलक्षणा की कमर में हाथ डाले भारतीय माशरे की मुरव्विजा इखलाकियात के ऐन मुताबिक वो कमरे में घुस गया। मनोहर लाल जो उसके पीछे पीछे चला रहा था उससे 2 कदम आगे जाकर रुक गया। उसने कमरे का नंबर नोट किया, दिल ही दिल में उसे 2-3 मरतबा दोहराया और बड़ी तेजी से नीचे आ गया, जहां उसकी साथी खातून बेकरारी से उसकी मुंतजिर थी। खैरियत तो थी? उसने मनोहर लाल की तरफ अपनी सीट छोड़कर खड़े होते हुए बेकरारी से बढ़कर कहा। मनोहर लाल ने एक ठंडी सांस भरी, बस वही हुआ जिसका डर था। लड़की ने पूछा, क्या मतलब, क्या हुआ? मनोहर लाल ने कहा, आज 6 माह बाद एक दोस्त के बजिद होने पर एक पैग पी लिया था, अब 6 माह तक भुगतूंगा। उफ, भगवान ने मुझे बीमारी लगानी थी तो कोई और लगा देता। उसने अपने लिए मैदान हमवार करने का ये मौका भी ढूंढ लिया था। औरत परेशान नजर आ रही थी। ओ माय गॉड। मनोहर लाल ने माजरत की, मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए, मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। औरत ने बैरे को मुतवज्जे करने के लिए चमचा बजाया। ओ जरूर जरूर। थोड़ी देर बाद दोनों होटल से बाहर आ रहे थे। मनोहर के नाना करने के बावजूद उसकी साथी खातून ने बिल खुद अदा किया था। होटल के पार्किंग एरिया में खड़ी एक कार की तरफ दोनों बढ़ रहे थे। ड्राइविंग सीट औरत ने ही संभाल ली थी और मनोहर लाल उसके साथ बहुत निढाल होकर बैठा था। अजली बीमारों की तरह उसने अपनी टांगें फैला ली थी और सीट पर बेदम सा होकर गिर पड़ा। औरत ने उसकी तशवीशनाक हालत पर इजहार हमदर्दी की। मेरी मानो तो आज मेरे घर पर ही रह लो। मनोहर ने कहा, नहीं डियर, सोचता हूँ इस मुख्तसर जिंदगी में कोई काम अधूरा ना छोड़ जाऊं। लड़की बोली, ऐसी बातें ना करो, मेरा दिल बैठने लगता है। तुम नहीं जानते मनोहर लाल, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी हूँ। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मनोहर लाल ने कहा, समीता देखो, नॉर्मल रहा करो, मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ, हम अच्छे दोस्त हैं, मेरे लिए यही बहुत है। एक ऐसा आदमी जिसकी जिंदगी का पल भर भी भरोसा ना हो, उसके मुताल्लिक ऐसी सोच रखना दुरुस्त नहीं। मेरी बीमारी अभी तक डॉक्टरों की समझ में नहीं आई, सिर्फ ये कहते हैं कि शराब और मीट छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया है, बस कभी बदकिस्मती से बेएहतियाती हो जाए तो जान पर बनाती है। लड़की ने कहा, मेरे साथ चलो ना दिल्ली, मेरा कजन स्पेशलिस्ट है, उसे क्यों नहीं दिखाते? मनोहर ने उसे कार रोकने को कहा। अच्छा देवी जी, अभी तो मुझे यहाँ ड्रॉप कीजिए, फिर कभी ये भी सोचेंगे। आज शायद पहली मर्तबा उसने मनोहर की बात नहीं मानी थी और उसके नाना करने के बावजूद उसे अपने घर ले आई थी। अव्वल तो उसका खानदान घर पर था ही नहीं, और अगर होता भी तो उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। बेडरूम में पहुंचते ही मनोहर लाल निढाल सा होकर बिस्तर पर गिर गया। समीता ने बड़े एहतराम और मोहब्बत से उसके जूते और कोट उतार दिया और उस पर गर्म कंबल डालकर बाहर निकल आई। उसकी जिंदगी में मनोहर लाल पहला ऐसा मर्द आया था जिसने उसे मर्दानगी के एहतराम पर मजबूर कर दिया था, वरना आज तक तो वो खुद खिलौना बनी रही थी या फिर उसने मर्दों को खिलौना बनाए रखा था। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर भी वो इसी पोजीशन में दम साधे लेटा रहा। करीबन 5 मिनट बाद वो उठा। दरवाजा उसने अंदर से लॉक कर दिया। उसका हाथ फौरन ही सरहाने तपाई पर धरे टेलीफोन की तरफ बढ़ा, लेकिन क्रेडल पर हाथ रखकर चंद लम्हे कुछ सोचने के बाद उसने फोन वहीं रख दिया। उसकी आंखें बड़ी बेचैनी से कमरे में सजी अशिया का जायजा ले रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वो टेप रिकॉर्डर की तरफ बढ़ा। टेप रिकॉर्डर के साथ दर्जनों कैसेट धरे थे। उसने कदरे एक पुराना कैसेट टेप रिकॉर्डर में लगा दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अब उसका रुख ड्राइंग रूम की तरफ था। ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था। समीता गालिबन सोने की तैयारी कर रही थी। उसे आते देखकर उसने लाइट जला दी। खैरियत तो है? वो बेचैन हो गई। बिल्कुल ठीक हूँ समीता, देखो तुम ये ज्यादती न करो, मैं यहाँ सो जाता हूँ, तुम अपने बेडरूम में सो जाओ। उसने इजहार हमदर्दी किया। ओ मनोहर, तुम्हें उठना नहीं चाहिए था, चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊं। वो मनोहर के जिद करने के बावजूद उसे बेडरूम तक छोड़ गई। बेडरूम का दरवाजा भी उसने दोबारा बंद कर दिया था। आधा घंटा इंतजार करने के बाद मनोहर एक मर्तबा फिर कमरे से बाहर निकला और ये इत्मीनान करने के बाद कि समीता सो गई है, बेडरूम में वापस आ गया। उसने मामूली रोशनी वाला बल्ब बुझा दिया था और खिड़की के सामने से पर्दा भी सरका दिया था ताकि चांद की रोशनी अंदर आ सके। इस रोशनी में उसने कैसेट पर एक पैगाम रिकॉर्ड किया और उसे अपने सरहाने रख कर लेट गया।
टेप को दोबारा उसने बिल्कुल उसी पोजीशन में रख दिया जिसमें वो पहले थी। पर्दा अपनी जगह पर करने के बाद उसने एक मर्तबा फिर सूरत हाल का जायजा लिया और दरवाजा अंदर से लॉक करके सो गया। वो रात खान के लिए अल्फ लैला की कोई तिलिस्माती रात बनकर रह गई थी। उसे सुलक्षणा और खुद से आसाब शिकन जंग लड़ना पड़ी थी। खासी रात गए जब सुलक्षणा का नशा उतरा तो उसे एहसास हुआ कि उसे वापस भी जाना है और उसने उसके जाते ही सजदा शुक्र अदा किया। रात करीबन 2 बजे वो सोया और सुबह 7 बजे तक वो सोता रहा। उसकी नींद फोन की घंटी की आवाज से खुली थी। पहले तो वो एक लम्हे के लिए भौंचक्का ही रह गया था कि उसे किसने फोन किया है। फिर कुछ सोचते ही उसने लेटे लेटे फोन उठा लिया। हेलो, ऑपरेटर लाइन पर था। रूम नंबर 249 सर, योर कॉल प्लीज। उसने ऑपरेटर को इजाजत दे दी। ओके। थोड़ी देर के बाद एक गैर मानूस सी आवाज उसे टेलीफोन पर सुनाई दे रही थी। आप सनाम से तो नहीं आए जी? लफ्ज सनाम पर वो चौंका। उसका दिल भी एक मर्तबा जोर से धड़का। आप कहाँ से आए हैं? उसने अब कोड वर्ड्स का तबादला शुरू कर दिया था। जी मैं तो अबोहर से आया हूँ। खान ने पूछा, आप कपड़ा, सिगरेट, खुशबू किसका बिजनेस करते हैं? जवाब मिला, मैं तो अशियाए खुर्दनोश का व्यापारी हूँ महाराज। खान ने आखिरी पत्ता फेंक दिया। ओह, तो आप दर्शन लाल जी हैं। दूसरी तरफ से जवाब मिला, जी मिस्टर अरुण। खान ने पूछा, मेरे लायक कोई सेवा? आवाज आई, आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। खान ने कहा, ओके, और सिलसिला मुनक़ता हो गया। खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो अपने आदमियों में पहुंच तो गया। ये बात उसके लिए बाइस इत्मीनान थी। इस होटल में आने से पहले उसने एक खास नंबर पर सिर्फ अपने होटल का नाम बताकर फोन बंद कर दिया था और रात डिनर पर हिदायत के मुताबिक अपने कोट के कॉलर में पीले रंग का फूल लगा लिया था। अब उसे ये इत्मीनान जरूर हो गया था कि रात उसका ताक़ुब किसी सरकारी आदमी ने नहीं बल्कि उसके अपने साथियों में से किसी एक ने किया था। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसने नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवाया और अब कपड़े बदलते हुए नाश्ते का मुंतजिर था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। खान ने यही समझकर दरवाजा खोला कि नाश्ता आ गया है, लेकिन दरवाजे पर एक खाली हाथ स्टीवर्ड उसका मुंतजिर था। सर एक्सक्यूज मी, आपके लिए। ये कहकर उसने एक बंद लिफाफा खान की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू। उसने स्टूअर्ट को टिप दी और अंदर चला गया। लिफाफा मोटे कागज का था और उसे एहतियात से स्टेपलर से बंद किया गया था। खान ने खोलने से पहले ये इत्मीनान हासिल कर लिया था कि उसे रास्ते में चेक तो नहीं किया गया। लिफाफा उसने मेज पर रख दिया और नाश्ते का मुंतजिर हो रहा। थोड़ी देर बाद नाश्ता आ गया। वेटर के जाने पर उसने दरवाजा लॉक किया और लिफाफा चाक कर दिया। लिफाफे से एक खत और चाबी बरामद हुई। खत में सिर्फ इतना लिखा था कि वो रेलवे स्टेशन के लॉकर नंबर 45 से एक केसट निकाल ले और रात होने तक अपना पैगाम वहां रख दे। खत पढ़ने के बाद उसने जलाकर वॉश बेसन में जाया कर दिया और नाश्ता मुकम्मल होने पर उसने कमरे ही से सुलक्षणा का नंबर मिलाया। वो अभी तक सो रही थी। खान ने उसे ताईद इज़्दी जाना। इस तरह वो उसकी मजीद सोहबत से कदरे महफूज भी रह सकता था। अपना नाम उसने नोट करवाया और कमरा लॉक करके बाहर निकल गया। उसका रुख भटिंडा की उस आबादी की तरफ था जहां अक्सर मुलाजिमीन रिहाइश पजीर थे और जिसका एड्रेस उसे बूढ़े ने दिया था। उसने जानबूझकर पहले करीबन 2.5-3 घंटे तक भटिंडा के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया और जब वो दोपहर के करीब शादी वाले घर पहुंचा तो भटिंडा उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। उसने बाहर बैठे नौजवानों में से एक के जरिए अंदर पैगाम भेजा। बमुश्किल 2 ही मिनट के बाद उसके सामने रमा खड़ी थी। उसके सीने का ज़ेरो बम खान को ये एहसास दिलाने के लिए काफी था कि वो उसका नाम सुनकर भागती हुई आई है। अचानक खान को सामने देखकर वो गुंग ही तो रह गई थी और यही हाल खान का भी था। उसने गो के रमा को बस के सफर में भी जी भर कर देखा था, लेकिन आज तो उसका सरापा वाकई कयामत ढा रहा था। वो शायद जिंदगी के कमजोर तरीन लम्हे थे जब वक्त की गिरफ्त उस पर सख्त हो गई थी। खान ने इस कैफियत से फरार जरूर चाहा था, लेकिन उसकी हैसियत तो एक असीर बेदाम से ज्यादा और कुछ नहीं थी। उसी लम्हे खान को एहसास हुआ जैसे वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके सिर्फ इसीलिए यहाँ पहुंचा था कि रमा उसे मिल जाए। उसने मौत की लंबी सरहद जो पिछले 3 रोज में पाटी थी सिर्फ इसलिए कि जिंदगी रमा बनकर उससे गलेआन मिले। आज शायद यहाँ रस्म मेहंदी अदा की जा रही थी। इसी मुनासबत से उसने सुरमई रंग की साड़ी जेबतन कर रखी थी। हाथों और बालों में कलियों के गजरे सजाए जब वो उसके सामने आई तो खान को यूं महसूस हुआ जैसे जिंदगी के तपते झुलसते रेगजारों में सफर करते हुए अचानक शाम उतर आई हो। उसकी हालत उन मुसाफिरों जैसी थी जो सदियों का सफर पाटने के बाद मंजिल को अचानक पा लेते हैं। एक ठंडक, एक बेनाम सी तमानियत उसके अंदर उतरती चली गई। हुस्न की देवी ने दोनों हाथ पार्वती की तरह अपने सीने पर बांधकर उसे नमस्कार किया। खान के हाथ भी किसी मैकेनिकी अमल के ताबे ऊपर उठे और बंध गए। दोनों को अपनी कुव्वते गोयाई सलब होती हुई महसूस हुई। बिलाखिर रमा ने ही हौसला किया, अंदर आइए ना। जी अच्छा कहकर वो मबहूत सा उसके पीछे पीछे अंदर आ गया।
दोनों को बहुत से लोगों के दरमियान से गुजर कर कमरे तक पहुंचना था। लोगों के दरमियान से गुजरते हुए उसे बहुत सी नजरें अपने जिस्म पर चुभती महसूस हो रही थी। किसी ने एक आध फिक्रा भी तफरीहन या मजाकन रमा की तरफ उछाला था। उस वक्त खान रमा के चेहरे पर कौनती हया की सुर्खी न देख सका। इस सफर का इख्तिताम एक छोटे से कमरे पर हुआ। कमरे के एक कोने में सामान धरा था और जमीन पर चटाई बिछी हुई थी और एक कोने में कुर्सी धरी थी। बिल्कुल शादी वाले आम घरों का सा माहौल था। शायद सुहाय फैमिली को ये कमरा घर वालों की तरफ से अलॉट हुआ था। कैसे हैं आप? बहुत देर कर दी आपने आने में। रमा के लहजे में घुली अपनायत ने उसे एक मर्तबा तो हिलाकर ही रख दिया। खान ने संभाला लिया, देर कैसी, अभी कल ही की तो बात है, आज मैं आ गया। वो बोली, बैठ जाइए ना, कब तक खड़े रहेंगे आप? उसने कमरे में धरी वाहिद कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसे अपना ही घर जानिए। लेकिन नहीं, शायद मैं गलत कह रही हूँ, आपका घर तो बहुत बड़ा होगा। खान ने कहा, रमा जी, बात घर की नहीं, घर के मकीनों की होती है। जिस घर में आप जैसे लोग मौजूद हों। रमा ने हंसते हुए बात काट दी, ये हमारा घर नहीं, हमारा घर तो दिल्ली में है। खान कहे बगैर न रह सका, आप जिस घर में भी आएंगी वही घर सज जाएगा। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। बाकी सब लोग तो अभी बाजार गए हैं। पिताजी कह गए थे कि आप आए तो जाने न दूं। शुक्रिया कहते हुए वो कुर्सी पर बैठ गया। रमा अपने तबस्सुम की बिजलियां उस पर निछावर करती बाहर चली गई। कमरे में वो अकेला रह गया। अंदर तो कोई न आया, लेकिन बाहर खासा हंगामा बरपा था। शायद उस मकान के किसी साथ वाले कमरे में लड़कियां मिलकर शादी ब्याह के गीत गा रही थीं। लेकिन खान गीत के बोलों से बेनियाज सिर्फ ये सोच रहा था कि वो इतना कमजोर क्यों हो गया है। इस लड़की ने उस पर क्या जहर फूंक दिया है कि वो उसकी आंखों की गहरी झील में डूबने लगा है। उसे अपने रवैये की कोई खास वजह दस्तयाब न थी और वो खासी उलझन महसूस करने लगा था। इसी उलझन से निजात उसे तब मिली जब रमा हाथों में ट्रे थामे अंदर दाखिल हुई। क्षमा कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। उसने बर्तन वहीं चटाई पर रख दिए और खुद भी उस पर बैठकर खान के लिए चाय बनाने लगी। बोर तो नहीं हो रहे आप? चाय की प्याली खान की तरफ बढ़ाते हुए उसने कहा। नहीं तो आपके होते हुए बोरियत कैसी? खान को अपने लफ्जों की अदायगी पर भी शायद इख्तियार नहीं रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया। कुछ भी था तो वो मुसलमान ज़ादा। औरत का एहतराम उसकी घुट्टी में पड़ा था। वो रमा के नाना करने के बावजूद उसके करीब ही चटाई पर बैठ गया। चटाई की ट्रे दोनों के दरमियान रखी थी और रमा सोच रही थी, ये वाकई इंसान है या आदमी के रूप में किसी देवता ने जन्म लिया है। उसके नजदीक वो हिंदू नौजवान कोई अवतार ही हो सकता था जो औरत का एहतराम भी करता हो, वरना तो यहाँ औरत को जिस्मानी लज्जत के हुसूल का एक जरिया समझने के अलावा कोई मर्तबा ही नहीं दिया जाता। वो जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ आए रोज उसकी कोई न कोई हम जमात किसी न किसी लड़के की दरिंदगी की भेंट चढ़ जाती और लोग ऐसे किसी भी ताजा वाक़े के फौरन बाद इस बर्बरियत के खिलाफ जुलूस निकालते। लेकिन उनके इस जुलूस पर उनके साथ ही लड़के ही नहीं बल्कि पुलिस वाले भी हंसा करते और बस। इससे आगे फिर लीडरों के बयानात का एक लाजानी सिलसिला शुरू हो जाता। रमा को हमेशा अपने माशरे की इन खोखली अकदार से नफरत रही थी। उसके अंदर बहुत देर से एक लावा खौल रहा था जिसे फट जाने की राह भी मयस्सर नहीं आ रही थी। आज पहली मर्तबा उसे एहसास हुआ कि इस माशरे में औरत का एहतराम करने वाले अरुण कुमार जैसे नौजवान भी मौजूद हैं। खान ने उसे गहरी सोच की दलदल से बाहर खींचा। कहाँ चली गई आप रमा जी? बोली, कहीं नहीं, सोच रही थी आपसे मिलकर जाना ही मेरा सौभाग्य था। ये अल्फाज बेख्तियार उसके मुंह से निकले और खान के दिल में तराजू कर गए। बोला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसे कहना ही पड़ा। कम से कम इस मामले में वो खुद से ज्यादा देर तक मुनाफिकत नहीं कर सकता था। क्या सोच रहे हैं आप? नमस्कार। अचानक ही आशा अंदर दाखिल हुई। खान तो गड़बड़ा कर ही रह गया। अरे तुम? खान ने जवाब में हाथ बांधे। कब आई तुम वापस? रमा ने अपनी खजालत मिटाने को कह दिया। वो खान की दिली कैफियत का एहसास भी कर चुकी थी और ये भी जानती थी कि आशा कितनी शरारती है। दीदी, मैं तो कब से आई हूँ, आपकी बातें छुपकर सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए खान की आंखों में झांका जो उससे नजरें चुरा रहा था। उसकी इस बात पर दोनों के दिल जोर से धड़के थे। लेकिन रमा जल्द ही नॉर्मल हो गई। वो अपनी बहन को अच्छी तरह जानती थी। रमा ने उसे प्यार से डांट दिया, अच्छा ज्यादा जबान न चलाया करो। उसने बहन को चिढ़ाया, नहीं चलाती जबान, लेकिन जाऊंगी नहीं, मुझे भी तो अरुण कुमार जी से मिलना है। क्या हरज है, रहने दीजिए इसे। खान भी अब संभल चुका था। रमा ने खड़े होते हुए कहा, अरे जाती है या? और आशा बाहर भाग गई। मैं देखूं बाकी घर वाले भी आए हैं या नहीं। ये कहते हुए वो बाहर निकल गई। रमा की वापसी बमुश्किल चंद मिनट के बाद ही हो गई थी। उसकी ज़बानी खान को इल्म हुआ कि अभी तक घर के बाकी लोग वापस नहीं आए। आशा तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई थी, वहीं से वापस आई है। खान ने कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए आज्ञा दीजिए, शाम तक वापस आ जाऊंगा, अभी मुझे बहुत काम करना है।
रमा का दिल नहीं चाहता था कि वो वापस जाए, बोली बैठे रहिए ना, अभी सब लोग आ जाएंगे। खान ने कहा देवी जी, किस कमबख्त का जी चाहेगा कि आपके पास से उठकर जाए, बस एक दो जरूरी काम है, वो करने के बाद वापस लौट आऊंगा। रमा ने उसे बादल नखास्ता ही जाने की इजाजत दी और दरवाजे के बाहर तक वो उसे छोड़ने आई थी। इस दौरान उसने न जाने खान को कितनी मर्तबा याद दिलाया कि उसे शाम तक बाहर सूरत वापस आना है। रमा से रुखसत होकर खान सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।